हेलो, इस लास्ट में क्या कंप्लीट किया था आप लोगों ने? पास्कल ट्रायंगल। सॉरी, हेलो। हाँ सचिन, महेश सर ने क्या कराया था? पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल मैट्रिक्स थोड़ी चल रहा था। सर वो पॉइंटर से किया था ना। ओके 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 ओके, मतलब मैलॉक चल रहा होगा तो आपका। हाँ सर, हाँ। ठीक है ना, मैलॉक कैलॉक मतलब वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन चल रहा होगा। ओके, सो दैट यस वाज अ सर। पॉइंटर। लाइक अगर मुझे डायनेमिक पॉइंटर क्रिएट करना हो देन वी हैव एन ऑप्शन दैट वाज integer star a. Star a means it's nothing. It just used to inform the computer that I want some dynamic memory allocation. And for that memory allocation, we have a function that is malloc. And here you have to provide the size actually. Like if you need 5 integers, then what is the expected size of that 5 integer? 5 इंटीजर को कितना साइज चाहिए? सो जनरली 10 बाइट। काफी सिस्टम में इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता है, काफी सिस्टम में इंटीजर का साइज 4 बाइट्स होता है. ओके, सो आई एम लाइक आई डू नॉट वांट टू लाइक deep in this controversy. What is my requirement? मैं सिर्फ सिस्टम के ऊपर छोड़ देता हूँ. वही सिस्टम just find the size as you want that. Just give the answer me on like whatever the size required by this system. Like अगर आप 64 आर्किटेक्चर में काम कर रहे हो then it just use 4 bytes of memory allocation for that integer. And if you are working in a 32 bit of system, then the size of the integer is 2 bytes. So like just हम लोग को उस झमेले में नहीं पड़ना है. ठीक है, confusion में नहीं जाना. What we will do, we will just use the size of operator. So what is the use of the size of just find the size. It will ask the operating system, you just return the required size, okay. So size of integer and multiply it by 5. Okay, and if you do not want to do this, you can directly write down this 10 also. अब ऐसे 10 bytes भी लिख सकते हो, it doesn't matter. Okay, so 10 means what? Now guys, what it does, ये करेगा क्या? What is the meaning of this 10? It allocates a 10 bytes of memory. वो सीधा 10 byte का memory allocation कर देगा. I need 5 integer actually. मुझे 5 integer चाहिए. Then what is my requirement? Okay, Rashmi, Aman, Rashmi, Divya, आपके लिए question है. Like what is my requirement? Like I have an integer a and I want to store 100 over there. So it's okay. We can directly store 100 inside the a. But I have an integer a and I want to store 10.2. So is it possible? Rashmi, Divya, and Aman. Is it possible? Can we store floating point data in an integer variable or not? Aman sir? Store कर सकते हैं? Yes, anyone else? Divya, Rashmi, Gopal, Sachin, Preeti,
सर स्टोर तो कर सकते हैं पर वो प्रिंट करेंगे ना तो 10 ही आउटपुट आएगा। ओके गाइस, इसका साइज क्या चाहिए? फ्लोट का साइज क्या होता है? 4 बाइट 4 बाइट्स। और इंटीजर का साइज अगर 32 बिट बिट सिस्टम में काम करे तो कितना होता है? 2 2 बाइट्स। बाइट्स सो 4 बाइट्स का डेटा 2 बाइट्स में कैसे स्टोर कर सकते हो? That's not possible. Actually, it generates the error. Right now, in this statement, it will not generate the error because initialization allowed है. ठीक है, यहाँ पे ये allowed है. But अगर आपने ऐसा लिखा होता, now it generates the error. Okay, declaration and assignment अलग अलग किया होता ना, at that time it generates the error. तो अब मुझे ये error नहीं चाहिए. Then, any solution? I want to run this one. Then is there any solution? Yes, Divya, Kalyani, Gopal. Fast guys. सर वो परसेंटेज एफ लगा के कर सकते हैं। Sorry. Percentage? एफ लगा के प्रिंट कर सकते Sir, हैं। I do not want to print. I want to store. मुझे आगे जाके इसका कुछ ऐसे लूप में यूज करना था। चलो ऐसे i equals to a करके मुझे लूप चलाना था। I want to print that. I want to use this value. Guys, अगर इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, then we have an option that is we have to just go with typecasting. This one is known as a typecasting or type conversion. इसको बोलते हैं typecasting, or we can say that it is a type conversion. In short, you have a data in some format. आपके पास डेटा कोई फॉर्मेट में था, and you want to convert that data in some another format. Okay, so मुझे डेटा किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था? What is your expectation? I want to convert the float in a. What is the type of a? That's integer. Then आपको राउंड ब्रैकेट में डेटा टाइप लिखना है. That's that. It's quite easy. बहुत सिंपल सी चीज है. आपको राउंड ब्रैकेट में क्या लिखना है? You have to just write down integer. Is it clear to everyone? Okay, so that's known as typecasting. I hope कि easy लग रहा है, कोई problem नहीं है इसमें. Okay, so guys, एक simple सा problem है मुझे यहाँ पे. The problem is like I have a function and that function returns float value. अंदर कुछ भी है, like we have not to worry about that. कुछ कोड लिखा हुआ है and it returns a float value to me. Okay, ये function get data नाम का function मुझे float दे रहा है. Now whenever I want to, like whenever you require, you can call this, but मैं उसको call करके ऐसे integer में store करता हूँ. Now, is it allowed or not allowed? It's not allowed. What is the return type of this get data? Get data का return type क्या है दिव्या? It is a float. तो इस get data को जब भी आप call करोगे, what will happen? This 1.2 will be replaced over here. In short, this statement will look like this: a equals to 1.2. Now, what is our requirement? This is not supported by our compiler, so we need some typecasting. So typecasting means what? We have to write down integer over here. Okay, but actually पहले not. हम दूसरे रूम में जाइए। Sorry. Yes, अरे ना चलता है। रश्मि आप इंटरनली बातचीत कर रहे हो तो म्यूट रखा करो. Okay, then guys, we need a typecasting over here. आपको यहाँ पे टाइपकास्टिंग लिखना है. Is it okay? आपको यहाँ पे टाइपकास्टिंग यूज करना है. So फंक्शन के आगे भी टाइपकास्टिंग यूज कर सकते हो, नॉर्मल डेटा के आगे भी आप टाइपकास्टिंग यूज कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, फंक्शन के आगे भी टाइपकास्टिंग यूज कर सकते हैं बिकॉज एज वी नो इक्वल टू कैसे काम करता है. इक्वल टू ऑपरेटर जनरली वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इक्वल टू ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो राइट साइड से जो डेटा मेरे पास आ रहा है, इट जस्ट टाइपकास्ट दैट एंड स्टोर इन ए वेरिएबल. It just typecast the data and store in a variable. Okay, so it's equivalent to this one. तो पहले तो हमारे पास जैसे यहाँ 10.10 लिखा था, 10.2 लाइन नंबर 7 में, तो ये गेट डेटा की जगह पहले वैल्यू आएगी and that value is right now 1.2. तो इसकी जगह पे वैल्यू आएगी and after that is typecasted. Okay, so it's not a big deal. So guys, मैंने ये सब कुछ क्यों बताया, ऑफ द टॉपिक क्यों चले, हमने ट्रैक क्यों चेंज किया? बिकॉज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस malloc function is रिटर्न टाइप ऑफ दिस malloc function is. आप malloc function का अगर सिंटैक्स ओपन करते हो लाइब्रेरी में जाके, अगर मैं उसका सिंटैक्स ओपन करूं, then the return type of this malloc function is generic. Otherwise simply you can say that okay, argument में क्या था, argument में size आ रही है उसके पास. ठीक है ना, हम लोग integer value पास कर रहे हैं. yes, हमने यहाँ से देखो size of integer मतलब it's nothing but a 2 or 4 multiplied by 5. मतलब इसका आंसर, इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा? either 20 or 10. either क्यों बोला मैंने? because integer का size we have no idea about actually the size of integer, because वो जब रन करोगे तो कौन से प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट. सो कंसीडर इट इज 2 बाइट, इंटीजर का साइज 2 आ रहा है, तो 2 into 5 दैट्स नथिंग बट 10. तो यहाँ से आर्गुमेंट पे क्या पास हो रहा है, ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं ना. सो आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा है, इट्स 10, सो इट्स इंटीजर. तो डेफिनेशन के टाइम जब void malloc नाम का जब फंक्शन बना होगा तो कोई तो आर्गुमेंट में वेरिएबल लिखा होगा ना, लाइक n
p, कुछ भी, उससे मुझे मतलब नहीं है. What is the data type of it? Sir, it's integer. It is integer. Okay, that is nothing but a integer. So that's quite easy. ये तो हमको पता चल रहा है. But sir, ये malloc नाम का जो फंक्शन है, ये मुझे क्या बना के दे रहा है? It will allocate a memory. वो मेमोरी एलोकेट करेगा कितना? सर आपने 10 बाइट्स बोला, देन 10 बाइट्स, और वो ए में स्टोर करेगा. ओके, ये तो समझ में आया. सॉरी, ये तो हमको समझ में आया. बट अगर मुझे फ्लोट टाइप का मेमोरी एलोकेशन करना हो तो, जैसे मुझे 4 फ्लोट वेरिएबल्स चाहिए. ओके, आई वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द टाइप फ्लोट, राइट? Then you have to use the same function like malloc is used, and 20 you have to pass. Why 20? Why 20? Because we are damn sure a single float variable need 4 bytes of memory allocation. एक float variable को कितना memory allocation चाहिए अमन? It needs 4 bytes. और मुझे 4 चाहिए. Okay, so we have to write down 16 actually. Sorry, that was my mistake. We have to write down 16 here. Okay, एक float को 4, तो 4 float variables को 16. But guys, it's a bit surprising. It's a bit surprising that malloc का आंसर integer pointer में भी चल रहा है, malloc का आंसर float pointer में भी चल रहा है. So it is bit like surprising. सभी में इसका आंसर चल रहा है, तो कुछ नई बात होगी. तो ये कौन सा, इसका रिटर्न टाइप क्या है? What is the return type of it? So right now I'm not worrying about the return type. Actually the return type is actually a generic pointer. इसको हम लोग बाद में लर्न करेंगे, but that is nothing but a generic pointer actually. Okay, so मुझे क्या करना है, इसका जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है malloc का, जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है, that is actually not the float pointer. ये float pointer नहीं है. That is damn, like that is sure. For that we are sure it is not a float pointer, or that is not an integer pointer, because malloc का रिटर्न, malloc का जो आंसर आ रहा है वो हम a में भी स्टोर कर रहा है. That's nothing but an integer type of pointer, and we store that one in a p also. That's nothing but a float type of pointer. दोनों में हम स्टोर कर रहे हैं. ओके, तो ये तो हम श्योर है कि सर malloc ना तो फ्लोट दे रहा है, ना तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, कुछ अलग ही रिटर्न कर रहा है. ओके, सो वी हैव टू टाइपकास्ट द आंसर. जैसे हमने यहाँ पे कुछ यूज किया था, लाइन नंबर 29 पे फोकस करो जो हाईलाइट किया हुआ है. आई नीड द आंसर ऑफ दिस गेट डेटा. मुझे गेट डेटा फंक्शन का आंसर चाहिए. सो I thought that get data integer return करेगा, but what is the return value of this get data? Get data का return क्या था? It was float. Okay, but I want to store that in an integer. मुझे उसको किस में स्टोर करना था? I want to store that one in integer. So हमने क्या यूज किया आगे? ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा guys? Destination data type. Destination means what? आप कौन सी चीज में स्टोर करना चाहते हो? Get data का आंसर I want to store that in an integer. मुझे इसको इंटीजर में स्टोर करना है. एंड गाइस यू हैव टू यूज दिस इंटीजर इन अ ब्रैकेट. ओके, सो इन द सेम वे. यस कोश भाई, मिस्टर कोश, ये malloc का रिटर्न टाइप क्या है? वी हैव नॉट टू वरी अबाउट दैट. आपको स्टोर किस में करना है? ए में. व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ए? यस गोपाल, जागृति, कल्याणी, ए का डेटा टाइप क्या है? Yes, coach. Aman, fast guys, active रहो. What is the data type of a? Line number integer. 2. It's not integer, Sahib. It's integer pointer. Okay, pointer is a data type. Okay, it's a derived data type. It's a derived data type. सर पॉइंटर की वैल्यू भी इंटीजर में एज इंटीजर स्टोर था ना pointer पॉइंटर की वैल्यू कुछ भी हो, it doesn't matter. But हम लोग क्या यूज कर रहे हैं right now? It's a data type. Okay. Okay, Tell me one thing. अगर मैं ऐसे लिखूं कैरेक्टर है, तो what is a? वेरिएबल. Yes, that is variable. What is character? डेटा टाइप. Okay. What is the size of a? और 2 बाइट्स. Sabash. 4 बाइट्स. 1 byte, sir. It's 1 byte. It's a 1 byte. Okay. So guys, देखो आपने बोला a is a variable. Okay, let me just note down that thing. A is variable, character is data type, and the size is 1 byte. Okay, up to this I hope कोई problem. But now अगर मैं ऐसे बोलूं, okay, like I have float a. Now what is a? So I'm saying a is a variable, float is a data type, and the size is nothing but a 4 bytes or 4 byte. English के ऊपर focus नहीं कर रहे. Okay. But now if I will tell you just
integer a, then seeing a is variable, int is it's a data type and size is nothing but a 2 bytes. So can you please tell me ये size change क्यों हो रही है? साइज चेंज क्यों हो रही है हर एक की? पहले कैरेक्टर का साइज 1 था, मतलब a का साइज 1 था, देन a का साइज 4 बाइट्स हुआ, देन 2 बाइट्स हुआ. व्हाई दिस साइज वेरीज? यस पुश भाई, हमारा डिस्कशन चल रहा था कुछ. हाँ रश्मि. सर क्योंकि ये तीनों अलग अलग डेटा टाइप्स हैं. हाँ मतलब डेटा टाइप रिस्पॉन्सिबल है साइज चेंज करने के लिए ना. डेटा टाइप वेरिएबल्स की फैसिलिटीज, फंक्शनलिटी, साइज, कैपेसिटी जो भी बोलो वो सब डेटा टाइप रिस्पॉन्सिबल है ना. तो अगर मुझे ऐसा करना है कि इस ए का मुझे एरे बनाना इन फ्यूचर, ए का मुझे एरे बनाना है, देन एक मैंने इंटीजर ए इस तरीके से लिखा है ना, एक इंटीजर ए इस तरीके से लिखा. दोनों में फर्क है या एक ही है? चेंजेस है दोनों में या दोनों का मीनिंग एक ही होता है? सो गाइस बोथ हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंस. लाइक इसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. मतलब ए के अंदर फर्दर मेमोरी एलोकेशन होगा, ए के अंदर फर्दर मेमोरी एलोकेशन होगा. तो ये फंक्शनलिटी चेंज हुई ना, फंक्शनलिटी चेंज हुई, बट पुश हमने दोनों के लिए वर्ड कौन सा यूज किया? इंटीजर. तो फंक्शनलिटी इस स्टार की वजह से चेंज हुई. देन ये पूरे को डेटा टाइप बोलना चाहता है. इज इट ओके? इंटीजर स्टार ये पूरा एक डेटा टाइप है. अगर मैं ऐसे बोलूं ओके लाइक इंटीजर ए ऑफ 5, नाउ once again capacity change हुआ a का. now memory allocation of a is 10 bytes और 20 bytes. 10 और 20 क्यों बोल रहे हैं कि साइज ऑफ इंटीजर 2 बाइट है तो 10 bytes, साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट है तो 4 into 5 that is 20 bytes. तो गाइज यहाँ पे इसको मतलब डेटा टाइप कौन सा होगा? दैट्स नथिंग बट एन इंटीजर एरे. डेटा टाइप इज नथिंग बट एन इंटीजर एरे. आप ऐसे नहीं बोल सकते इट्स एन इंटीजर. It's not an integer, it's an integer array. What about this? It's integer pointer. And what about this one? It's integer only. Okay, so अगर आपको कोई यहाँ पे data type of a पूछता है, then what is the data type of a? It's not an integer because integer का तो fix हो गया 2 byte. But इसमें आप further memory allocation कर सकते हैं. Is it okay? So what is the data type of this a? That's integer pointer. Okay. So guys हम लोग का discussion ऐसे चल रहा था कि सर malloc का return type बहुत different है. मतलब malloc इंटीजर का डेटा भी स्टोर कर रहा, रिटर्न कर रहा है, फ्लोट वाला मेमोरी एलोकेशन भी रिटर्न कर रहा है. सो वी आर कंफ्यूज्ड. if मैं इंटीजर में काम करूं तो क्या लिखना चाहिए? यस सचिन, एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके सो गाइस अगर malloc का आंसर मुझे इंटीजर में स्टोर करना देन वी हैव टू गो विद टाइप कास्टिंग. सो एट दैट टाइम यू हैव टू जस्ट चेक कि आप ए जो ये ए लिख रहे हो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ इट? सो दैट्स इंटीजर पॉइंटर. just use integer pointer over here. Now what about this one? ये इसका आंसर भी मुझे a में स्टोर करना था, देन आगे क्या लिखना चाहिए? Same thing we have to do. Okay, what about this? इसके आगे क्या लिखना चाहिए? Could you please help me? क्या लिखें यहाँ पे? Yes guys. Float pointer. Is it okay to everyone? Is it okay to everyone कि आगे टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं? बिकॉज malloc नाम का जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप कुछ डिफरेंट था. उसका रिटर्न टाइप कुछ तो डिफरेंट है क्योंकि वो सभी में आंसर स्टोर करता है. सो वी वर सरप्राइज कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि एक बंदा सभी में आंसर स्टोर करे. सो वी जस्ट चेक द डेटा टाइप ऑफ दैट, सॉरी रिटर्न टाइप ऑफ दैट, एंड दैट वाज वॉइड पॉइंटर. सो दैट अगर आप उसको इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर में स्टोर करना चाहते हो, malloc का जो मेमोरी एलोकेशन उसको स्टोर करना चाहते हो, देन वी नीड सम टाइप कास्टिंग. आई होप कि ये सिंटेक्स से आप लोग फेमिलियर हो. मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि ये क्यों लिखते हैं. ओके बाकी आप सिंटेक्स ऑलरेडी यूज कर चुके हो. महेश सर ने एग्जांपल्स कराए थे तो आप लोगों ने सिंटेक्स यूज किया था ना? आई थिंक सचिन, प्रीति किया था ना? रश्मि ओके. सो आप डबल मेमोरी एलोकेशन, डबल पॉइंटर के ऊपर भी आप लोग वर्क कर चुके हो. ओके ना? डबल पॉइंटर के ऊपर भी आई थिंक तभी तो मैट्रिक्स बना होगा. सर ने डबल स्टार भी बताया होगा. ओके सो नाउ गाइस टुडेस टॉपिक इज एकदम सिंपल सा प्रोग्राम लेना है. ठीक है, मुझे वो पॉइंटर पे तो चलना ही है, बट उससे पहले मुझे लाइक एरे के साथ तो सर ने आपको पास्कल ट्रायंगल करा दिया था. सर ने मैट्रिक्स तक काम करा दिया. आफ्टर दैट द चैप्टर इज फंक्शन. तो मुझे आपको फंक्शन के साथ पॉइंटर बताना है. तो गाइस एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है. दिव्या एंड गोपाल आप हेल्प करोगे. ठीक है, मेरे पास 2 नंबर है. दिव्या
I have two numbers and simple which are integer type here, and I do not want to get the value of them. I want to just set the value. तो मेरे पास दो नंबर थे, मैंने वैल्यू सेट कर दिया and I want to swap them. Swap मतलब समझते हो ना guys? Swap मतलब इसकी टॉपी उसके सर. एक्सचेंज. Yes, that's an exchange. A का वैल्यू B में चाहिए, B का वैल्यू A में चाहिए. So let's simply write down before swapping. तो मस्त डेकोरेट कर देते थे थोड़ा. Okay guys, now I want to swap this. तो कोडिंग बताओगे क्या लिखूं? और एक तो वे है कि हम थर्ड वेरिएबल लेकर कर सकते हैं. थर्ड वेरिएबल लेना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ रश्मि, देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ स्वैप नाम का, और उसको हम दोनों वैल्यू दे देंगे. सचिन, अमन, दिव्या, उसको ऐसा बोलेंगे तू ऐसा कर दे भाई कि ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाए. ओके, तो मेरा टेंशन खत्म. आई विल डायरेक्टली प्रिंट द वैल्यू. इज इट गुड? कितना मस्त दिख रहा है देखो. अब बस इस भाई साहब को डिफाइन करना है, एकदम नीट एंड क्लीन कोड है. ओके दिव्या, प्लीज हेल्प मी टू डिफाइन दिस फंक्शन. दिव्या, या रश्मि नहीं, दिव्या. दिव्या, काफी दिनों से लेक्चर नहीं लिया ना मैंने, मुझे थोड़ी नाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना. प्रीति, दिव्या, आज मौन रहते क्या आपका? स्टिल रिप्लाई नहीं. वाह लड़की वाह. प्रीति, हाँ जी प्रीति. थर्ड वेरिएबल में फंक्शन बनाना है प्रीति. डू फर्स्ट थिंग आई वांट टू डिफाइन दिस फंक्शन. पहले तो वो बताओ. ओके अमन सर. हाँ जी सर. प्रेजेंस नहीं ले रहा सर. डिफाइन करो फंक्शन, जल्दी से बताते जाओ, वरना कुछ तो बता रहा है. देखो हाँ जी कुछ सर. रश्मि आप नहीं, आप और सचिन का टर्न नहीं. कुश सर. सर बताओ ना आंसर. एक हाँ सर का क्या मतलब होता है? हाँ बता क्यों है अभी. बी मिनट. गोपाल, जागृति, कल्याणी. जागृति, कल्याणी, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप आंसर दोगे. यस रश्मि. સર બસ हाँ कुश. 100 અને 100 એ બી ની વેલ્યू वाइट स्वैप void swap. yes very good. पहले रिटर्न टाइप देखना है guys. so is there an equal to sign? no, then the return type is always void. what is the name of the function? it is swap. yes, then yes कल्याणी, जागृति जो भी रिप्लाई कर रहा था, मैंने नाम पे ध्यान नहीं दिया. yes guys, after that how many arguments are there? two arguments. Two arguments are there. And what is the data type of those arguments? What are the data types? Integer. Just focus on this. Both of these are the type of integer, because A and B are the integer type of variables. Just write down integer. Can I use X and Y? Can I use X and Y over there? Yes sir. Yes. Then after Yes. that, what we have to write down? Coding बता दो जल्दी जल्दी से. चाय कॉफी वाला एग्जांपल गाइस. यस रश्मि. और एक वेरिएबल ले लेंगे. ले चुका मैं. वेरिएबल. यस सर. अब x इज इक्वल टू z लिख देंगे. ओहो, z इक्वल टू x. यस. तेरा रूटीन मिस्टेक है ये, तेरा और दिव्या का. x इक्वल टू z और z इक्वल टू x में फर्क होता है गाइस. हाँ ठीक है. आफ्टर दैट y इज इक्वल टू z. आपस लोचा मारा ना. सर एक और वे आपने कहा था ना जिसमें थर्ड इंटीजर लेने की जरूरत नहीं वो पड़ती. प्लस वाला था मतलब उसमें. सिर्फ एडिशन. वो प्लस वाला था एडिशन ना और concept? हाँ, सब्ट्रैक्शन. वो नहीं चाहिए अपने को. थर्ड वेरिएबल की बात होने के बाद तू लॉजिक मिक्स करेगी, ऐसा थोड़ी चलता है.
Okay guys, after that I want to just print the data over here in swap. Okay, swap नाम के फंक्शन के अंदर ये कैसा दिखेगा, this is x, this is y. So that's simple. Okay, expected output, मुझे इसका आउटपुट चाहिए, मैंने इसको सेव कर देता हूँ swap1.c. So let's save this one, turbo c bin. मुझे आउटपुट चाहिए सचिन सर, आपका टर्न है अभी, आउटपुट क्या आएगा? प्रोग्राम 1 मिनट में ओपन कर देता हूँ। मिस्टर अमन, आपका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा अभी? आपको कुछ बोल नहीं रहे हो? गोपाल, आपका भी कोई रिप्लाई नहीं है, घर पे फोन करना पड़ेगा क्या मुझे? ठीक है सचिन, यस सर। आउटपुट गाइस टेक योर टाइम एंड मुझे 2 मिनट में आउटपुट चाहिए। एंड देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर, ना कोई एरर नहीं है अपने पास, सो प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, ऐसा मत बोलना एरर। हाँ जी सचिन सर। हाँ रश्मि। सर हाँ, अगर स्वैपिंग से पहले a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 200 था, तो स्वैपिंग के बाद a इज इक्वल टू 200 और b इज इक्वल टू 100। सिंपल सा था गाइस, इतना टाइम लिया आप लोगों ने। देखो सबसे पहली चीज क्या आएगी बिफोर स्वैपिंग, सामने अपने पास दिस स्टेटमेंट पहला प्रिंट है 100 200 के बाद से, तो बिफोर स्वैपिंग आफ्टर दैट a इक्वल्स टू 100 b इक्वल्स टू 200। स्वैपिंग के अंदर जाएंगे, सो लेट मी जस्ट मूव टू द स्वैपिंग, वहां पे मैसेज आएगा इन स्वैप एंड x इक्वल्स टू, स्वैपिंग कर चुके हैं ना आप लोग, ये स्वैपिंग का लॉजिक है। तो x इक्वल्स टू 200 y इक्वल्स टू 100, हमने यहाँ से पास किया था पहला a का वैल्यू, ठीक है ना, तो a का वैल्यू x में गया तो दैट वाज 100, बट चेंजेस होने के बाद a में मतलब x के अंदर 200 आ जाएगा, y के अंदर 100 आ जाएगा, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, so x equals to 200, y equals to 100, up to this everything is fine. After that function is over, तो मैसेज आना चाहिए आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग a equals to क्या आना चाहिए? यस रश्मि क्या बताया था, मैं भूल गया। तो मतलब डेटा एक्सचेंज हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 200 हो जाएगा और b, हाँ a equals to 200 और b equals to 100। everyone agree? प्रॉब्लम, मैं एक दो गेट से ज्यादा दे रहा हूँ तो एंटर लगाते लगाते आउटपुट आएगा। गाइस सब लोग एग्री हो मैं रन करूं? अमन, कुश, सचिन, रश्मि, रश्मि ने तो बताया, यस सर। दिव्या, ठीक है, तो लेट मी रन दिस। तो पहले मैसेज आना चाहिए बिफोर स्वैपिंग a equals to 100 b equals to 200, हमने गेट ch लिखा था, so we have to press the enter to continue. So inside the step our control will be forwarded and the message is that x equals to 200 y equals to 100। अब क्या आना था दिव्या, सॉरी रश्मि, आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 200 और b इज इक्वल टू 100। ऐसे ही आना था ना? नहीं, कुछ तो लोचा आया ना इसमें। हाँ सचिन, सर वेरिएबल पहले सर प्रोग्राम दिखाइए अपना। लॉजिक गलत नहीं है, लॉजिक चलो गलत होता वापस तो से x और y वेरिएबल की में वैल्यू चेंज स्टोर नहीं होती ना, लॉजिक गलत होता तो x और y में चेंजेस नहीं आता, तो लॉजिक इज नॉट रॉन्ग, लॉजिक के ऊपर ब्लेम मत करना कोई। अगर लॉजिक गलत होता तो यहाँ पे चेंजेस नहीं आता, देखो यहाँ पे चेंजेस आया हुआ है, ये जो x और y की वैल्यू थी वो चेंज हुई है। तो हमें x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b कहीं पे मेंशन करना पड़ेगा ना? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आर्गुमेंट में डेटा भेजना था वो तो चला गया था,
यहाँ से हमने जो आर्ग्यूमेंट में भेजा 1 मिनट का, ये जो डेटा हमने आर्ग्यूमेंट में यहाँ से सेंड किया a और b का वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर पे सेंड हुआ है, वरना तो x और y की वैल्यू 100 200 कैसे हो? आर यू गेटिंग? चलो गाइस एक काम करते हैं, मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, रीजॉइन दैट, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा सेशन चलेगा इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है? तो एक बार रीजॉइन करिए, देन आफ्टर उसको हम लर्न करते हैं।